कवन गुण प्राण पत मिलूं मेरी माई। रूपहीन बुद्ध बलहीन मोए परदेसन दूर ते आए। मोहे परदेसन दूर ते आए। आया दूरों चल के मैं तकी तो शरण आए। मैं आशा रखी चित्त में मेरा सबो दुख गवाए जियो। सब अवगुण में गुण नहीं कोई। क्यों कर कंत मिलावा नाम रूप न बंके नैना। नाम रूप न बंके नैना। ना कुल टंग न मीठे में सब अवगुण मैं गुण नहीं को। कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई। थार हार कंपे बाला जियो ना जानो क्या करसी पियो। थार हार कंपे बाला जियो ना जानो क्या करसी पियो। हार कंपे वाला जियो ना जानो क्या करसी पियो। थार हार कंपे वाला जियो ना जानो क्या करसी
मत दिन भी जाए रैन गई मत दिन भी जाए पवर गए बग बैठे पवर गए बग बैठे आए हर हर कंपे बाला जियो ना जानो क्या करसी पियो हर हर कंपे बाला जियो ना जानो क्या करसी पियो रैन गई मत दिन भी जाए रैन गई मत दिन भी जाए पवर गए बग बैठे आए पवर गए बग बैठे आए हर हर कंपे बाला जियो ना जानो क्या करसी पियो हर हर कंपे बाला जियो ना जानो क्या करसी पियो काचे करवे रह न पानी काचे करवे रह न पानी हंस चलिया काया कुमला काछे करवे रह न पानी हंस चलिया काया कुमलानी हंस चलिया काया कुमलानी रैन गई मत दिन भी जाए रैन गई
मत दिन भी जाए पवन गए बग बैठे आए। हर हर कंपे बाला जियो ना जानो करसी पियो। हर हर कंपे बाला जियो ना जानो क्या करसी पियो। वार कन्या जैसे करत शिंगारा। वार कन्या जैसे करत शिंगारा। क्यों रलिया माने साज पतारा। क्यों रलिया माने बार बतारा। रैण गई मत दिन भी जाए। रैण गई मत दिन भी जाए पवन गए बग बैठे आए। हर हर कंपे बाला जियो ना जानो क्या करसी पियो। हर हर कंपे बाला जियो ना जानो क्या करसी पियो। काग उड़ावत पूजा पिरानी। काग उड़ावत पूजा पिरानी। कह कबीर यह कथा सिरानी। काग उड़ावत पूजा पिरानी। काग उड़ावत पूजा पिरानी। कबीर ये कथा
ਹਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ। ਹਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਏ, ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਏ। ਪਵਰ ਗਏ ਪਗ ਬੈਠੇ ਆਏ, ਪਵਰ ਗਏ ਪਗ ਬੈਠੇ ਆਏ। ਥਰ ਹਰ ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ। ਹਰ ਹਰ ਥਰ ਹਰ 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 ਕੰਪੈ ਬਾਲਾ ਜੀਓ ਨਾ ਜਾਣੋ ਕਿਆ ਕਰਸੀ ਪੀਓ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਏ, ਪਵਰ ਗਏ ਪਗ ਬੈਠੇ ਆਏ ਰਹਾਉ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 792 792 ਪੇਜ 'ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਤਥਾ ਸਭਨਾ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸੂਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਥਾ ਸਭਨਾ ਭਗਤਾਂ ਕੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦਾ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਔਰ ਰਾਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਰਾਗ, ਪਹਿਲਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਗ ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਗ ਹਨ, ਕੁਛ ਐਸੇ ਰਾਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਦੇ ਚੌਥਾ ਦੇ ਪੰਜਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਨੌਵਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਟੋਟਲ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਉਸੇ ਰਾਗ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੌਕਅਪ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਲੌਕਅਪ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। So we have got purest form of this first and document with us ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖੋਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਉसी ने लिखी है। ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਲੋਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਨਕ ਨਾਲ ਪਰਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਪਰ ਪਿਓਰੈਸਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਂ ਮਾਖਣ ਖਾਇਆ ਛਾਛ ਪੀਆ ਸੰਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਛਾਛ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਾਉ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ-ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੈ ਰੈਨ ਗਈ ਮਤ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਏ, ਭंवर ਗਏ ਬਗ ਬੈਠੇ ਆਏ। ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜੇ ਰਹਾਉ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਮਨ ਦੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਗਲਾਪੁਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਦੋਂ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਮਨ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ, ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਮੂਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਰੈਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਨ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇसी ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਵਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪੰਡੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਪੱਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਵਗੁਣੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਵੇਂ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਵਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਪਾਛੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਪਾਸਟ ਨਹੀਂ। ਪਾਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੈਨ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਗੇ ਦਾ ਮੈਨਾ ਵੀ ਉਸ ਪਲ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪਲ ਹੈ, ਪਾਛੇ ਦਾ ਮੈਨਾ ਵੀ ਉਸ ਪਲ ਤੋਂ ਦੈਨ ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਹੈ। ਪਾਛੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਸਟ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਹੋਮ ਹੁਆ ਪਾਛੇ ਪਿਆ ਆਨੰਦ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੇ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਰੈਲਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਛੋੜ ਦੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਲਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਰੈਲਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਹਾਊ ਵਨ ਕੈਨ ਰੈਲਿਸ਼, ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੜ੍ਹੇ ਰਹੀਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁਲਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗਾਲ ਦਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਣ, ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦਾ ਮਾਣ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ कबीर सब ते हम बुरे, कबीर जी कह रहे मैं सबसे बुरा हूँ, मैं सब तो पैड़ा, हम तज भलो सब कोई, मेरे को छोड़ के सारे बहुत अच्छे हैं। तो गुरमत का एक कीमती कॉन्सैप्ट है, वो समझना होगा। वो है बुरा भला कहो किसनों कहिए, सगले जी तुम्हारे, सगले जी से मैं भी आंदा, मैनू भी रब जी ने बनाया है। जे होरां नूं रब जी ने बनाया है, और कोई कुछ गलत करे उसकी तरफ उंगली नहीं करनी चाहिए, किसी को जज नहीं करना चाहिए। किसी को जज करोगे तो मिस जज करोगे, इसलिए जज ही नहीं करना चाहिए ताकि मिस जज ना हो। जज ही नहीं करना चाहिए। जे कोई भी गलत काम करे उन्होंने बुरा नहीं कह सकते, मैं भी बुरा नहीं है। कबीर साहब ये नहीं कह रहे कि मैं बुरा हाँ, कबीर साहब कह रहे हैं कबीर सब ते हम बुरे, हम तज, ए हम छड़, हम मैं, हम मालूम है कौन है, ए हम जड़ी लाई है ना, मैं तेरा अपना दिखावा, शो ऑफ, ए हम वाले ख्याल बुरे ने। कबीर साहब ते हम, हम जैसा कोई है जिन्होंने हम दी बीमारी हो जाए ना,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵੇਲੇ, ਸਰੀਰਕ ਵਿਛੋੜੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆਏ। लेकिन आजकल सर्दियां ने, इंडिया इतने गरीब बिना ठंड तो मर जाते हैं। कल तक न्यूज़ सी शायद 114 ठंड के कारण मर गए ने, बिना कुछ पाया, ठंड लगती है उन्होंने। वो आपने जिहड़ा विछड़ गया उन्होंने चंदन नाल भी संस्कार कर देंगे, पर किसी लोड़वंद उत्ते एक पल्ला नहीं पाएंगे। दिखावा, जिन्होंने हम दी बीमारी लग जाए वो खुशी दे मौक़िਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਦੇ ਆਰ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦੈਟ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡੈਥ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜੈਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਡੀਪ ਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕੀ ਦੰਦ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਿਆਂ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਪਰਸਨ ਦੀ $700 ਟਿਕਟ ਖਰਚੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਟਿਕਟ ਖਰਚੀ, ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ $4000 ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਟਿਕਟ ਖਰਚ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੰਦ ਕਥਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮ ਹੈ ਨਾ, इस तो जोड़ा छुट जाता है। हम तज, हमको अगर छोड़ दो ना, भलो सब कोई नज़र आते हैं। जो सारे ही भले नज़र आते हैं, फिर दिखाना किनू है? दिखा के भलाई खरीदनी है, दिखा के अमीरी खरीदनी है, दिखा के स्टेटस रुतबा खरीदना है, दिखा के मैं धर्मी हाँ खरीदना है। दिखावा करने की लोड़ ही नहीं रही। जदों इंसान एक हेठ समझ जाता है ना, हम तज हो जाता है। हम तज भलो सब कोई नज़र आते हैं। कबीर साहब कहते जिन्हों यह अवस्था समझ आए, जिन ऐसा कर बुझे मीत हमारा सोए, मित्र बन जाता है रब जी का। रब जी की मित्रता उन्होंने प्राप्त हो जाती है। यह हम बिचों हटा दे। यह हम दे ख्याल बुरे ने। कबीर साहब कहते कबीर जान दिन होम हुआ, यह मेरा हम वाला होम वाली गेम जदों खत्म हुई ना, मुक्की, शरीर नहीं मरिया। जा दिन होम हुआ, पाछे पे आनंद, देन आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद पता है क्या हुआ? जब होम मेरा मर गया तो मेरे को उसके बाद आनंद आना शुरू हुआ। लोगों ने मूँह का मैंने तो शरीरक डैथ रखा हुआ सी। हुण कबीर साहब आनंद की गल कर रहे हैं। जहाँ दिन होम हुआ पाछे पिया आनंद, फायदा क्यों है? मोए मिलियो प्रभ अपना, संगी भजे गोबिंद, मेरे सारे इंद्रे ज्ञानेंद्रे, मेरा रोम रोम, सारी सखियाँ सहेलड़ियाँ, मेरे सारे मित्र सज्जन सत्संगी भी ना हुण उस पासे लग पे ने। इहदा मतलब ये सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ अकल है नहीं। इंद्रे ज्ञानेंद्रिया, अख नक कान ਨੂੰ ਤੇ अकल है नहीं। इन्हां कोल कोई थॉट प्रोसैस नहीं है। दे आर जस्ट अनपढ़ इलिटरेट अज्ञानतावास ऑर्गन्स। इन्हां दा काम है कुदरत के नियम सिस्टम विच, अखां दा काम है सिर्फ देखो और अंदर मैसेज दो, बस। क्या देखा ये फैसला अंदर होगा, अच्छा देखा या बुरा देखा। आँखों को नहीं पता भी ये बुरा है तो मैंने देखना नहीं। आँखें नहीं बंद हो सकती हैं, कान नहीं बंद हो सकते हैं, जीभ नहीं रुक सकती है। ये इनको मैसेज देना होगा। जेड़े मैसेज नहीं देंदे ने वो मरण तो बाद स्वर्ग या जन्नत की लालच रखते हैं। कबीर साहब कहते हैं सुर्ग वासना बाछिए डरिए न नरक निवास, होना है सो होएगो मन है न कीचे आस। कबीर साहब जींदे जी कमन नरक क्या स्वर्ग बेचारा संतन दो राधे काट दिया, हमने कट कर दिया। हम नहीं मानते स्वर्ग नरक, हेल और हेवन, जन्नत दोज़ख। कबीर साहब कह रहे हैं। फिर कबीर साहब कहते हैं अच्छा कबीर साहब जो तुसी मनते ही नहीं हो स्वर्ग नरक, फिर अपनी बाणी अंदर तुसी बहिश्त लफज यूज़ करते हो। कबीर जी कबीर कहते हैं पिस्त नजीक राख रहे माना, दास कबीर तेरी पन है समाना। कबीर साहब कहते हैं पिस्त नजीक राख रहे माना, पिस्त मीन्स बहिश्त। मेरे लिए यही बहिश्त है अगर तुम भगवान जी, खुदा जी, गॉड जी, वाहिगुरु जी, अल्लाह जी मेरे को अपने साथ रखते हो, अपनी याद देते हो ना अपने गुण देते हो, यही बहिश्त है। पिस्त नजीक राख रहे माना, दास कबीर तेरी पनह समाना, मैं तो तेरी शरण आया मनु सुमत बख्शो। जींदे जी स्वर्ग माणना है साढ़े ते डिपेंड करता है, वरना मरना, मरण तो बाद नरक का डर, जमा का डर, अते जींदे जी जमा दे वस पै के नरक भोगते रहना। कबीर साहब आज दे शब्द
ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਰਹਿਣ ਗਈ ਮੇਰੀ ਨਾ ਉਹ ਅੰਧਿਆਰੀ ਅਵਗੁਣਾ ਰੂਪੀ अज्ञानता वास वाली रहन वाली जिंदगी गॉन। अब हम अंधेरे में नहीं रहते हैं। रात होती है पर हम अंधेरे में नहीं रहते हैं। क्यों? अंदर चानन है। दीवा बले अंधेरा जाए। हनेरा अंदरों जा चुका है। जिन्हों के हिरदे अंदर अंधेरा होंदा बाहर जोतां बालते हैं। जिन्हों के हिरदे अंदर हनेरा होंदा है वो बाहर बहुत सारिया जगबुज लाइटां लगाते हैं। जिन्हों के हिरदे च अंधेरा होंदा है वो लोगों को दिखाने वास्ते कोई भी सैरेमनी, कोई भी त्यौहार, कोई भी फैसटीवल करने वास्ते करोड़ों रुपया दी लाइटां खर्च देंदे ने। पर किसी गरीब अंदर हनेरा ना, उन्होंने कोई गरीब नज़र नहीं आता। इस करके किसी गरीब का भला करने को तैयार नहीं होंदे। कहंदे ने मेरी अज्ञानता रूपी रैन चली गई है। हुणे मैं इसनूं पूरा डिटेल खोजांगा पर मैनूं मोस्टली देखने को मिलिया जदों भी रैन आएगा, रैन ते नन्ने नूं सियारी है। रैन फैमिनिन जेंडर है। रैन गई किवें चली गई रैन? अंधेरा जांदा किस तरह? जदों प्रकाश लै लो, जदों चानण लै लवो। जो ही चानण लिया हुण हनेरा नहीं हो सकता। तुसी एक दीवा बालो, उहदे विच तेल पाओ, तेल मुक जाएगा, दीवा बुझ जाएगा। बत्ती सड़ जाएगी, दीवा बुझ जाएगा। उहदा शीशा काला हो जाए, लैंप का दीवा बुझ जाएगा। बिजली जगाओ, इलैक्ट्रिसिटी पिछों ना आए, बत्ती बुझ जाएगी, हनेरा हो जाएगा। पर अकाल मूरत है ना, रब जी अकाल ने, इमोर्टल ने। इस करके उन्हां दी लाइट, उन्हां दा सुनिया लै लो, उन्होंने तेल नहीं देना पैंदा, उन्होंने कोई चार्जर नहीं लगाना पैंदा, कोई जनरेटर नहीं लगाना पैंदा, उन्होंने बिजली किसी को खरीदनी नहीं पैंदी। वो वाली अज्ञानता दी हनेरे दी लाइट किस तरह गई? जदों मैं सच रूपी दिन ले लिया, सच रूपी प्रकाश ले लिया। हुण ये नहीं जा सकता क्योंकि इसकी लाइट बुझेगी नहीं। इनू दोबारा तेल पाना ही नहीं पएगा। मत दिन पी जाए, हुन ए दिन नहीं जाए, ना नहीं जाएगा, नहीं जाता है। जाता किस तरह है? असी रोज आशा की वारिश पढ़ते हैं, जिनी ऐसा हर नाम ना चेत्यो से काहे जगाए राम राजे। ये मानस जन्म दुर्लभ है, बड़ा कीमती है, वैल्यूएबल है। डोंट वेस्ट इट। नाम बिना बिरथा सब जाए। जाए की होंदा है? जावे, जा रहा है, जाता है, इट्स गोइंग। छूट रहा है हाथ से, समा बर्बाद कर करके चले जुआरी दो हाथ झाड़ वांगू। जुआरी जैसे खाली हाथ उठ के चला जाता है, टाइम खत्म हो रहा है, जाया करते हैं। पर ये वेस्ट ना जाए ताकि करना पेगा। जिनी ऐसा नाम ना चेत्यो से काहे जगाए राम राजे। ये मानस जन्म दुलांब है, नाम बिना बिरथा सब जाए। हूँ जे नाम लै लो, रब जी नूं याद रखण वाले गुण लै लो, रब जी की निरंतर याद वाले रब्बी गॉडली क्वालिटीज़ डीड्स के नाल जीण लग पो, फिर दिन नहीं जाता, फिर हमेशा चानण रहिंदा है। हमेशा गलती करांगे तो मानो हनेरा है मन अंदर, हमेशा गलती करांगे तो अंधियारी रात है। इस करके गुरबाणी विच रात नूं जिंदगी रूपी रैण कहा गया, चानण नूं प्रकाश कहा गया, दिन कहा गया। रैण गई मत दिन भी जाए, ये हुण की हो जाएगा? है भी ओसी जाए ना जासी। अब नहीं जाएगा। एक बार जब सच समझ आ जाता है ना, वो नहीं जाता। बशर्ते सच समझ आया, बशर्ते कि उन्होंने सुख माणे, उहदे चों आनंद माणे, रैलिश करके जीवे है। साडी नीयत सी कि मैनू जीना ना पवे,
इस करके मैं सोचा कोई ऐसा तरीका हो, सारी उम्र कुछ भी करो, बाद इच कोई धार्मिक कर्म कांड और पाखंड कर लो, कोई मिडल मैन बुला के, तो स्वर्ग भी सीट ला ही देगा। प्रॉपर्टी डीलर धरती ते ही बड़े ने, धार्मिक भी प्रॉपर्टी डीलर बड़े ने, कित्थों दे? इस धरती दे नहीं, स्वर्ग नरक दे। नरक दी प्रॉपर्टी कैंसल करा देंदे ने, स्वर्ग दी प्रॉपर्टी लै देंदे ने, जन्नत दी। ऐसे बड़े ठेकेदार सानू रोज़ जिंदगी च मिलते हैं। सानू ये गल पसंद आई, यहाँ पर जो मर्जी कर लो। इसलिए धर्म में पढ़ाया गया यहाँ पर के सारे पाप दूर हो सकते हैं अगर बाद में कोई ऐसे ऐसे कर्मकांड किए जाएं, ऐसे ऐसे किए, ऐसे उसकी आत्मा निकले नहीं, उसकी सिर की खोपड़ी को डंडे से ऐसे तोड़ो, फिर उसमें देसी घ्यो डालो, फिर चंदन सामग्री डालो, ताकि आत्मा निकल जाए। फिर ऊंचा टाँ मार मार के रो, ताकि आत्मा भाग जाए, नहीं तो इधर ही भटकती रहेगी। उसको घर की कई चीज़ों से मोह प्यार है, वो भूत प्रेत बन जाती है, फिर वो घूमती रहती है, भटकती रहती है। इसलिए फिर एक दिन मिल के प्रार्थना करो, अपने चरणों पे उसे निवास बख्श ही दो ना। अगर नहीं बख्शा तो अब बख्श दो। देखो सब ने मिल के प्रार्थना की तुम्हारे आगे, सारे कर्म कांड किए। फिर अपना बोलिया होया, अपना क्या होया, आप ही कैंसिल कर देता, नहीं शायद नहीं हुआ होगा, हमने जो कुछ किया सारा बेकार जा चुका है, वो अभी भटक रहे हैं ऊपर। फिर अब उनको श्राद्धों के दिनों में नीचे बुलाएंगे, आ जाओ नीचे कुछ खा लो, ऊपर ठंड है, कपड़े देंगे तुमको, तुम्हारे लिए एक मिडल मैन आया उसको देंगे, खीर भी उसे खिलाएंगे, पूड़े भी उसे खिलाएंगे, कपड़े भी उसे देंगे। समझेंगे भुलेखे से, भरम से कि तुमको मिल गया, अब जाओ ऊपर जाओ, वापस चले जाओ, घूमते रहो। 11वें महीने फिर तुम्हारे बारे में कुछ काम करेंगे। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ रख लिया वरीणा। जिन्हों के घर में 11वें महीने वरीणा होंदा है, वो 11वें महीने वरीणा फिर कहते हैं चरना च निवास बख्शना। पूरे 11 महीने नहीं बख्शा ना, हूँ तो मनो। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ वरीणा रखा है। कितना पाखंड करते हैं। और पहले दिन तो प्रार्थना करी जावांगे स्वर्गवासी। अरे वो तो लटक रहा है, तुम बोल रहे हो चरना अभी पहुंचा ही नहीं कहीं। कैसा पाखंड असी मचाया है। जदों असी ऐसिया प्रार्थनावां सुनते हैं ना मिडल मैन दियाँ, सानू अच्छियां लगदियां, इस करके असी सोचते हैं मैं जो मर्जी गलत मलत काम कर ला, ये जग मिठा अगला कि डिठा, तो मेरे बाद भी इंज प्रार्थना हो ही जाएगी, इंज छुट्टी जाइदा, इंज प्लॉट मिल ही जाता, धियां पुत्तर लै ही देंदे ने। इस तरह मरने ते पाखंड किए जाते हैं। एक बारी चानण हो जाए ना, फिर पाखंड नहीं करते। पाखंड हो ही नहीं सकेगा। जिस इंसान को सच का जीवन जीन नाल रतन जवाहर माणिक मिलते होन, वो इंसान एक सड़ी गली गोभी क्यों खरीदेगा, वट्टे गीटे क्यों खरीदेगा। सच मिल गया ना, मत दिन भी जाए, अब नहीं जाएगा। उन्होंने कहते ना उम्र है ना होवे सोग, देंदा रहना चुके क्यों, क्योंकि इतने सीतो सीता महिमा है, उन्हों का मन सच नाल सीता गया है, पिरोता जा चुका होया है। उन्हें एक कपड़ा हुन फटदा नहीं, सीता कदे ना पट, हुन डिपार्ट नहीं होता। रैन गई अंधियारी, एक बारी रैन चली जाए, एक बारी अज्ञानता चली जाए, मत दिन भी जाए। की होया, पावर गए। रैन का रिस्पैक्टिवली लिंक है पावर के नाल। पावर है कालख, पावर है पावरे दी, ਉਹ वाला ख्याल, ਉਹ वाली बिरती, ਉਹ वाला बिहेवियर जिहदे विच ਉਹ एडल्टरी करता है। भंवरा डिफरेंट डिफरेंट फुलों पर जाता है, इस करके एक फुल बारे कहा जाता है, वो फुल भंवरे को कहता तेरे को मैंने अपने ऊपर नहीं बैठने देना। क्यों नहीं बैठने देता, तू था पे अनेकों फूल को झूमता रहता है, तेरा तो कोई पता कोई दीन नहीं, ईमान ही नहीं है। ये भंवरे का एडल्टरी वाला सुभाव, ये भंवर गौन साडे मन की वाली बिरती। भंवर गए, रैन गई। बाग बैठे आए, बाग होंदा है चिट्टे,
ਉਜਲੇ ਚੰਗੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ। ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਕੇਸ, ਚਿੱਟੇ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ, ਜੋ ਥੀ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਭੂਰ, ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਪਿੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੂਰ। ਪਿੱਛਾ ਮੀਨਸ ਜੋ ਮੈਂ ਅਵਗੁਣ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਅਵਗੁਣ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोए परदेसन, दूर तई परदेसन किया मेरे अवगुण, मेरा पिछा भरमत फिरत फिरत वो जन्म बिलाने, वो मेरा पिछा। मैं बड़े किस्मां दा जीवन जींदा सी, सच मिल गया। कबीर जी बड़ी सच दी एक अवस्था सुना रहे ने, पर ये सच दी अवस्था पहला मन लैंदा है। साडा मन अगर लै लवे ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ 'ਚੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਤ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਮਝੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਨੇਜ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਟੀਨੇਜ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਹੀ ਟੀਨੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਚੇਂਜਿਸ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਚੇਂਜਿਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੀ ਚੱਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਇਰਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਟੀਨੇਜ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ दूध नाल धुले नहीं हाँ, पर जो सानू बचपन तो ही, काश इंडिया में लोग ये ना कहें कि अभी तो जवानी के दिन है, अभी तो गृहस्थी के दिन है, जब बुढ़े हो जाएंगे तब जब बच्चे घर में रखेंगे नहीं, प्रॉपर्टी छीन लेंगे, बहू पूछेगी नहीं, फिर हम जंगल बियाबान में जाके धर्म कमाएंगे। ये साडा ना चारों पासे नोशन है। ਲੈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੱਚ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਇੰਡੀਆ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੱਚ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੰਨ ਪਕੜ ਕੇ ਕਰਨ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਤਨਾ ਪਰਸੋਨਾ ਪਖੰਡ ਦਾ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ टीनेज 13 साल वाले दे नाल रिलेट ना करो। वो तो एक एग्जाम्पल है। कंपैरिजन करना है, मैं 90 साल का हो जावां और फिर भी मनु ओवर कॉन्फिडेंस रहे, मनु सब कुछ पता है, मेरे वर्गा सियाणा कोई नहीं, मेरे वर्गा सुपरमैन और सुपर वूमैन अज तो पहला कोई नहीं आया, मेरे वर्गा सियाणा बिजनेसमैन अज तक कोई नहीं आया, मेरे वर्गियां कैलकुलेशनस किसी को नहीं आंदियां, मेरे वर्गे बिजनेस दियां ट्रिक्स किसी को नहीं आंदियां। और इस तरीके दे नाल हर जिहड़ा टीनेज है वो ओवर कॉन्फिडेंट होंदा, माता पिता को बेवकूफ़ समझता है, बैकवर्ड समझता है। इंज असी किसी भी उम्र के होंगे जो सानू ओवर कॉन्फिडेंस होंदा और सही मैंने सच पता नहीं है, सच पता ना होने का गल की वो है सिम्पटम कि सच्चा जीवन है नहीं है। सच्चा जीवन नहीं है, मानो सच नहीं पता। जीवन में सुख चैन आनंद नहीं है। दिन 50 वारी सानू गालां कढ़नियां पैंदियां, छित्थे पैना पैंदा, त्यूड़ी साडी चढ़ जाती है। जीवन में सुख चैन होने है नहीं है। उस मत नूं कहंदे ने मुंद जोबन बाली। मुंद जोबन बाली होंदा है एक वो वाली टीनेज वाली स्त्री जिसनूं हुणे समझ नहीं है, पर उसके शरीरक बायोलॉजिकल चेंज हो गया कि वो जवानी वाल जा रही है और वो जवानी दे यूथ दे अज्ञानता दे हनेरे विच गलत काम वाली कुसंगत भी कर लेंदी है और उसका जीवन बिगड़ जाता है। वो माता पिता नूं भी फूल कर लेंदी है। वो सैल फोन ते जिसनूं कॉल कीती सी जिस भी गलत जगह उन्होंने डिलीट कर लेंदी है, मिस्ड कॉल एकदम डिलीट कर लेंदी है। ये सारियां चलाकियां चतराइयां वो खेडदी है। इंज असी खेडदे हां। साडी वो वाली जिहड़ी मत है ना, वो वाली मत नूं ना चतर चलाक कामण कहते हैं।
ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਔਰ ਸੱਚ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਮਾਈ ਗੋਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਫਿਕਸ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਹਾਉ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਰਹਿਣ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਨ ਨੇ ਸੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਭंवर ਗਏ ਬਾਗ ਬੈਠੇ ਆਏ, ਬਾਗ ਹੈ ਸੱਚ ਉਜਲਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਦ ਜਿਨ ਲੋਇਣ ਜਗ ਮੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪੈਸੀਮਿਸਟਿਕ ਅਰਥ, ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ जग वाल अट्रैक्ट हुई हुई सी, सोए से लोयण में दिख, जिनकी आँखों को मैंने देखा था वो चारों तरफ देख देख के बड़ा उसमें भ्रमित हो जाते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे। उन आँखों को आज मैंने देखा वो शरीर मर गया। कज्जल रेखना सहन दिया, उस वेले काजल डालते टाइम में अगर नौकरानी से गलती हो जाए तो उसको नौकरी से निकाल देते थे, मारते थे। आज उनके यहाँ पर कौवे बैठे हुए हैं, बगले बैठे हुए हैं, पंखी सुए बहिठ, आँखों पे उनकी आँखें खा रहे हैं। खैर ये मैं उस तू नगेट नहीं कर सकता, असी ये चो पॉजिटिव मैसेज लेंदे हाँ। कबीर साहब वांगू फरीद जी कहते हैं, फरीद देख फरीदा जो थी दाढ़ी हुई भूर, विजडम आ गई है। जिस आम कहा जाता है मैं वाल तू पिछ चिट्टे नहीं किते ने, तजर्बा विजडम सच ले लेना। देख फरीदा जो थी दाढ़ी हुई भूर, दाढ़ी का मतलब सिर्फ जे ए वाली दाढ़ी रख लवांगे ना तो फिर इस्त्रियाँ छुट जाएंगियाँ इस शब्द तो, कहेंगे हमारे लिए है ही नहीं है। शब्द सारी दुनिया वास्ते है, भावें किसी की दाढ़ी आई है भावें नहीं आई है, भावें कोई स्त्री है मर्द है छोटा है बड़ा है बुढ़ा जो मर्जी है। दाढ़ी हुई पूर का मतलब होता है नम्रता आ गई है, विजडम आ गई है, वो वाली मत अकल आ गई है जिहदे नाल रब जी की मिलाप प्राप्त हो गया। अग्गा नेड़ा आया पिछा रह गया, रब्बी मिलन की अवस्था प्राप्त हो गई। हुण फरीद जी ये कहते हैं, फरीदा जिन लोयण जग मोहिया से लोयण मैं डिठ, ए मेरिया इन अखां की गल नहीं चल रही, मेरे सारे शरीर के थॉट प्रोसैस नूं जिस विजडम वालियां अखां ने, हर जन देखा सतगुर नैनी दियां अखां ने पसंद किया ना, मोहिया पॉजिटिव सेंस है, आई एम रियली अट्रैक्टिड। असी सारे अट्रैक्ट होंगे हैं सच तो, इसी करके तो धार्मिक स्थान पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि असी लभ रहे हैं सच। सारी दुनिया में धार्मिक स्थान क्यों है इतने, सारी दुनिया में इतने धर्म क्यों नए नए निकलते रहते हैं? लोग अपने आप को धार्मिक स्थान पर ले जाकर सुकून क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि लोग सच ढूंढ रहे हैं। सच है, वो सच हर किसी को अट्रैक्ट करता है। बात अलग है कि वो उसको जी पाते नहीं है, क्योंकि मिडल मैन ने मैनिपुलेट कर दिया सारा, मिडल मैन ने मुश्किल बना दिया सारा। फरीदा जिन लोयण जग मोहिया, वो वालियां सच दियां अखां मिल गई हैं जिहदे नाल हुण मेरा सारा जग शरीर अट्रैक्ट हो गया, वो सच पासे जा रहा है। से लोयण मैं डिठ, वो वाली अख मिल गई है, इनसाइट मिल गया, विजन मिल गया है। कज्जल रेखना सहंदिया, हुण कज्जल की है रैण, अज्ञानता, विकार। हुण जरा जिहा भी विकार पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। किरक जरा जीवी, कूड़ की पाल जरा जीवी नहीं पसंद। कि सचारा हुई है कि कूड़ा टुटे पाल, हूँ कूड़ की पाल टुट गई है ना, जरा जीवी तो नहीं बची ना कूड़। इंडिया चो भ्रष्टाचार खत्म करना ना, साडे मन की सारी कूड़ दूर करनी पेगी। मन की कूड़ दूर सच नाल होएगी, धर्म नाल होएगी, कर्मकांड पाखंड नाल नहीं। किसी भी धर्म के कर्मकांड पाखंड तीरथ मिडल मैन नाल नहीं दूर होएगी। सालाना कोई फैसटिवल्स मनाने नाल नहीं दूर होएगी। सच दी मत मन नूं देनी पेगी, मन का हनेरा दूर न करना पेगा, मन नूं अज्ञानता तो चिट्टे पासे लियाना पेगा। मन नूं सच दी उजले दी मत दे के, प्रकाश दे के मन का हनेरा दूर करांगे ना,
ਤਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਨ ਲੋਇਣ ਜਗ ਮੋਇਆ ਸੇ ਲੋਇਣ ਮੈਂ ਡਿਠ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ? ਕੱਜਲ ਰੇਖ ਨਾ ਸਹਿੰਦਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ, इट्स वेरी नाइस। कल तक हम भूले हुए थे, अब नहीं भूलेंगे, इट्स वेरी नाइस। पर असी सारे बाकी भूले ही रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि लोग सुधर जाए, हम चाहते हैं चारों पासे सारे मेरे जैसे चोर और बदमाश बने रहें। इसलिए असी उसनों पता की ना रख लिया, देखो जी देखो, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, और शुक्र है हज को चली, शुक्र मनाओ। 100 खादे गए, उन्हें खा ले, उन्हें पचा ले, उन्हें हग ले, पर हुण हज को चली, शुक्र। असी किसी नूं सीधे पासे भी तो नहीं रहन देंदे। असी इंतजार करते हैं, कन रखते हैं, फोन रख देते हैं, रिकॉर्डिंग्स करते हैं, महल्ले वाले पूछते हैं, जमादारी पूछते हैं, उस घर में गई थी 1 साल हो गया, सास बहू की लड़ाई सुनाई नहीं दी, हाय अभी तक नहीं लड़े। जे वो प्यार नाल रहिंदे ने फिर उन्होंने कल्लिया कल्लिया मिल के नूह नूं वखरा पुट्टदे आ, सस नूं वखरा पुट्टदे आ, भी लड़ो। साडे धी पुत्र दा किते रिश्ता होवे ना, मल्लियां विच जा के गहराई तक खुद तक जाके रिश्ता लभण वेले पता की लभदे आ, हाय कोई नैगेटिव दस देवे। पुछो जे नैगेटिव दस देंगे तो फिर रिश्ता होएगा ही नहीं। व्हाट डू यू मीन? सच ते टुरना नहीं चाहते, सच ते टुर पईए। जिन लोयण जग मोहया, वो वाली विजडम जो प्राप्त हो जाए, पंखी सुए बहिठ उन्हां अखां, ओहदे विच सच है, उथे सच दे पंखी बैठ गए ने। पॉजिटिव सेंस च शब्द कज्जल रेखना सहंदे, हुण विकार बिल्कुल नहीं रहे। सो जदों असी अपने जीवन में कितने कुछ गलत करते रहते जो सच पता लग गया, उस दिन असी किसी को नहीं कह सकते ये कल तक तो बदमाश था, आप शरीफ। पिछले पोथे फोलन की लोड़ नहीं है, शुक्र है शरीफ होया है। वो सृष्टि बदल गई, वो कायनात बदल गई। एक बंदा बदमाशी तो सीधे पासे टुर पिया, कोई गल नहीं, वह पिछा ना फोलो। सानू जेड़ा बंदा अगे टुर पवे ना, जेड़ा बंदा जरा जा मशहूर हो जाए, जेड़ा बंदा जरा जा उच्चा हो जाए, जेड़ा बंदा जरा जा अमीर हो जाए, असी लभदे आ, इहदा पिछा फोलो, इनू थल्ले लाओ। कैसा साडा जीवन हो गया, कैसा करैक्टर हो गया। रोज़ पढ़दे उस्तत निंदा त्यागो, रोज़ पढ़दे निंदा भली किसी की नाई, देन वी डोंट वांट दैट कोई भी अगे बढ़े, वी डोंट लाइक। क्यों? क्योंकि उससे मेरी हौमे को ईगो को सट बजती है। ये इस धरती पर आके शरीफ भी हो सकता है, इसको ज्ञान भी हो गया है, हमें नहीं हुआ, इसका मतलब किसी को होता ही नहीं है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਬੰਬੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡੱਬੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ 6-8 ਡੱਬਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਖਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੈਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਟਰੀ 6 ਡੱਬੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਆਪ ਉਧਰ ਆ ਜਾਓ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਿਆ, ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਬਹਿਰਾ ਮੈਨੂ ਲਾਓ, ਮੈਨੂ ਲਿਆਇਆ। ਜਦੋਂ मैनू लैके आया, इन्हें रिलाइज़ किया ओए मेरी ऐनक तो मेरी सीट पे रह गई है। पढ़ नहीं सकता सी, इंग्लिश पढ़िया होया प्रोफैसर। और लिखता है कि जदों मैं पढ़ नहीं सकिया तो मैं बहरा नूं कहा तुम पढ़ के बता दो आज क्या क्या बना है। बहरा पता ही कहता है साहब आपकी तरह मैं भी अनपढ़ हूँ, मुझे भी नहीं पढ़ना आता। बहरा नूं नहीं पता ये पढ़िया लिखिया है, कितनी दुनिया नूं अंग्रेजी पढ़ा चुका है। इसलिए हमने सबको मान लिया सारे अधर्मी हैं, सारे निकम्मे हैं, सारे बदमाश हैं, सारे चोर हैं। सारे चोर नहीं हैं, सिर्फ तू ठीक हो जा बस। हम तज भलो सब कोई नज़र आएंगे, बस ऐ सिख। ऐ साडी मत नहीं सिखती, साडी मत पैड़ करती रहती है। इस करके कबीर साहब कहते हैं मेरी मत जिहड़ी है ना, मेरी मत हैरान होती है
जिस ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ हैं मेरी माँ हैरान होती है, ये मन कल तक तो मेरी आँखों को, मेरे दांतों को, मेरी जुबान को, मेरे कानों को, मेरे सारी बॉडी को डांस कराने ले जाता था, शराब भी पिलाता था, पराया रूप दिखाता था, आज ये मन किहड़े पासे टुर पिया है। मन सारे शरीर का चौधरी है, पति है, मालक है, सुल्तान है, इसनों मैनूवर करता है, जैसे मन चाहे वैसे बॉडी चलती है। हुण है ना मत जिहड़ी जोबन वाली अज्ञानता वस है ना, ये हैरान होती है, मन जी ते सीधे पासे टुर पे ने, ये कांबरिया हमारा क्या बनेगा। जिवें प्यो शराब पींदा होवे और बच्चे भी नाल शराब पींदे होण, प्यो शराब छड्ड दे, प्यो शरीफ हो जाए, प्यो रिश्वत लेना छोड़ दे, प्यो झूठ बोलना छोड़ दे। अब घर वाले सोचते हैं अबे हम तो भूखे मरेंगे यार, पापा का लगता है दिमाग खराब हो गया। हुण जे वो पापा के सामने कुछ भी झूठ बोलन, वो डरते ने पापा मारेंगे। पहले पापा ने मार मार के हमें झूठ सिखाया था। पापा तो मारते हैं, पापा गुस्सा करते हैं, पापा हर टाइम चौधरी हैं, या मम्मी या पेरेंट्स या गार्जियन। सो हुण ओहदा गार्जियन कौन है मत दा, वो डर रही है। थर हर कंपै बाला जी, थर हुंदा है मेरे तह दियां परतां, मेरे ख्यालों दियां परतां, मेरी धरती दियां परतां, जिन्होंने पताला पताल कहते हैं, वो भैड़े भैड़े ख्याल ना भुचाल आ रहे उन्होंने विच। थर हर कंपै, एक एक परत खुल रही है, वो उत्थे कूड़ निकल रही है, उत्थे कालख निकल रही है, मन की रैन चली गई है, यदि उत्थे रैन है। थर थर कंबनी धरती दे हर परत विच कांबा खटका डर कंबनी छिड़ी हुई है। थर हर कंपै बाला जीओ, बाला की होंदा है, बाला स्त्रीलिंग विच कोई कामण, वो जिन्हों अकल नहीं है, जिसनों समझ नहीं है, अज्ञानता वास सारे गलत काम करी जा रही है, पर सच लै नहीं रही। असी अज्ञानता वास आके सारे कर्म कांड पाखंड करके पूरी अपनी प्रधानगी करके पूरा धर्म का ठेकेदार बन के, भाई साहब जी के अफसर बन के, सेवादार जी के अफसर बन के, रागी सिंह जी के अफसर बन के, कथाकार के अफसर बन के, सारी अफसरी झाड़ छुड़ के और कर्म कांड करके कुछ पैसे मत्था टेक कोई हार रख के परिक्रमा करके चले जाते हैं। सच लैंदे नहीं आ, उस मुँह जोबन बाली वांगू आ। थर हर कंपै बाला जीओ, वो जवान लड़की जिदे कोल विजडम वाली, चिट्टे केसां वाली, पहे केस दुधवानी वाली, ज़र नहीं है, अकल नहीं है, बुजुर्गी नहीं है, विजडम नहीं है, बाला। जदों कोई भी दुनिया का इंसान कुछ गलत काम करे ना, उन्होंने गुरबाणी विच किहा यूथ विच अज्ञानता का हनेरा। उस वेले की होंदा सिर कंप्यो, पग डगमग है, नैन ज्योतहीन। ये शरीरक बुढ़ापे की बात नहीं चल रही, शरीरक बुढ़ापे नूं नहीं निंदिया जा रहा कि देखो जी बुढ़ापे में ऐसे होता है, सिर ऐसे ऐसे कांपने लग जाता है, आँखों से कुछ नज़र नहीं आता और लातें ऐसे इधर रखो उधर रखो गिरती हैं, चलना नहीं जाता। वो दी गल नहीं चल रही। कोई भी दुनिया का इंसान, चाहे वो 14 साल का है, चाहे वो जिन्ना मर्जी नौजवान है, भावें उन्होंने शरीर ते जितना मर्जी मान है, जे वो सीधा नहीं टुरदा, सीधे रस्ते ते नहीं टुरदा, पग डगमग है। जे उन्होंने सच नज़र नहीं आता, उहदियां अखां नैन जोत ते हीन ने, वो कज्जल रेख सहार लैंदियां ने, वो कालक विकार सारा सहारदियां रहिंदियां। वो सिर कंप्यो की है, सिर कंप्यो है, थॉट प्रोसेस ब्लर्ड है, क्लियर नहीं है, कभी शरीफ हो जाते हैं, कभी बदमाश हो जाते हैं, कभी ऐसे भी कर लेते हैं, कभी वैसे भी कर लेते हैं। सिर कंप्यो, नौजवान होके भी बुढ़ा है। पर जिहड़ा बुढ़ा होवे, जिसनूं ऐनक लगी होवे, ऑपरेशन भी अखां दे कराए होण, ठीक नज़र भी ना आ रहा होवे, ठीक सुनाई भी ना देंदा होवे, वाल चिट्टे हो गए होण, खा ना सकदा होवे, दंद डिग पे होण, पैर रख के ठीक तरीके नाल टुर ना सकदा पिया होवे, दो बंदे उन्होंने मोढे पकड़ के टोरन, बाथरूम तक ले जान, पर जे वो सच नाल जुड़िया ना, वो नौजवान है। साडा तरना पो इउं ही गयो, लियो जरा तंजीत, सानू बुढ़ापे ने घेर लिया है,
ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਬੁਢਾਪੇ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਥਾਰਜਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, 2-2 3-3 4-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇਗਾ, और दोपहर के 11-12 बजे तक सुता रहेगा। उल्लू वाला जीवन हो जाएगा। उल्लू रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं। ਇਹਦਾ ब्रेकफास्ट का टाइम 2-3 बजे शुरू होता है ਅੱਜ ਦੇ नौजवान का। डिनर का टाइम ਇਹਦਾ राती 2-2:30 बजे होता है। क्यों? क्योंकि ਇਹਦਾ लंच राती 7 बजे होएगा। सपर वाह, 7 बजे कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं। सारी बॉडी बिगड़ गई है, बेताला जीवन हो गया है। देर नाल उठना, देर नाल खाना, सच करन दा टाइम नहीं, घर वालों नूं पुछण दा टाइम नहीं। लियो जरा तंजीत बुढ़ा हो गया, हुण लिथार्जिक हो गया, सच दे काम वास्ते उठ नहीं खलोंदा, बुरे काम को उठ खलोया। 3 बजे तक डांस करा लो, थकेगा ही नहीं। ਉਹ वाली मत नूं कह रहे ने, थर हर कंपै बाला जियो, ना जानू क्या करसी पियो। पियो कौन है? मेरा मन जिहड़ा परमात्मा रूपी पति दे नाल इकमिक हो चुका होया, चलांदा मेरे शरीर नूं रब है, लेकिन अल्टीमेटली मेरे शरीर दी बॉडी वर्क्स अकॉर्डिंग टू मेरा मन। हुण वो उत्थे क्या जानना क्या करसी पियो, हुण उहनूं समझ नहीं आ रही हुण की होएगा। मैं तो अपनी कुमत नहीं छोड़ रही। हुण ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ रियलाइज़ हो रही है कि यह सीधे पासे पै चुका है। शायद इस करके शब्द उचारिया गया है, असां भी उत्थे जाना। साहिब संभाले पंथ निहाले, असां भी उत्थे जाना। ये साहिब संभाले पंथ निहाले की होंदा है? असां भी उत्थे जाना। वो कहते ने मन ने जिहड़ा पंथ सच दा संभाल लिया, मन जिहड़ा सीधे पासे टुर पिया है, सारे इंद्री ज्ञान इंद्री कह रहे हैं असां भी उत्थे जाना। वरना अफसोस की गल है, इनू भी डैथ नाल जोड़िया जाता है, शरीरक डैथ वाले यह शब्द पढ़िया जाता है ना भाई साहब जी? शरीरक डैथ वाले पढ़िया जाता है ना। तो इंज एक जगह एक रागी सिंह जी ये शब्द गा रहे सी किसी की डैथ के भोग ते, तब भोग जो ही पिया वो थले उतरे। मैं उन्होंने पूछा जाना है, तुसी जाना है? कहते नहीं। मैं क्या सही किया? मक्खी भी नहीं जाना चाहती, मच्छर भी नहीं जाना चाहता, हाथ ला उठ जाते हैं। कोई बंदा कहेगा जहाँ ये मर गया है ना, हमने भी वहाँ जाना है। असा भी उत्थे जाना। मन जिस सच पासे टुर पिया है ना, मन जिस सच दे मार्ग नूं संभाल के उस पासे टुर पिया ना, सारे इंद्रे ज्ञान इंद्रे लाइक टू फॉलो। असा भी उत्थे जाना। दे आर डिमांडिंग ऑल्सो, रिक्वेस्टिंग सानू भी उस राह ते पा लवो। एक बारी मान जाइए, मन्ने मग न चले पंथ, वो जमा दे पंथ ते नहीं चढ़ते ने, सच दे पासे टुर पैंदे ने। सो हुण अगले पदे विच कहते ने काचे करवै रह ना पानी। उसनूं ना समझ आ रही है कि मेरा भांडा कच्चा है। उसी कामण मत नूं जिहड़ी अज्ञानता वासी जिहड़ी थर हर कंबदी पई है, काचे करवै रह ना पानी। कच्चे भांडे च पानी रह नहीं सकता। कच्चे भांडे रखिए किच रखता ही नीर। कच्चे भांडे भी तुसीं मिट्टी के भांडे पानी रखते रहोगे, एक दिन खुर जाएगा, गल जाएगा। कच्चे नूं तां कहंदे ने जो मर जम्मै सो कच नहीं कच। असीं पल पल मरते रहंदे, असीं कच्चे हाँ। उन्होंने समझ आ रही है कि मैं तृष्णा के जल नूं कितना संभाल के रख लवां। नहीं रखा जा सकता मेरे भांडे विच, मत के भांडे विच नहीं रखा जा सकता। काचे करवै रहना पानी, जैसे कच्चे भांडे विच नहीं पानी रखा जा सकता। हंस चलिया इस तरह मेरे अंदरों जे सच निकल जाए, काया कुमलानी, मेरी काया कुमला जाती है। एक तो हमने शरीरक देखा ना, किसी इंसान को खाना ना मिले, उसको पानी ना मिले, उसको हवा ना मिले, उसको भोजन ना मिले, और कुछ महीने में वो उसकी काया आस्ता आस्ता कमज़ोर हो जाती है, वो मर जाता है। ये शरीरक है, बाहरली गल चल रही है। पर ये कह रहे हंस चलिया, जे मैं अंदरों विजडम उड़ा दी, जे मैं सच बचपन ही रब जी कोलों नाल लैके पैदा होया सी, पर मैं उन्हें छोड़ दिता। मैनू एक एग्जाम्पल याद आई। अमेरिका मेरी सिस्टर दा पोतरा, मनु सिस्टर दसदी है, एदा नाम सरब है। ए सरब ने कल की कीता है? मैं क्या की कीता है?
ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਡੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ कह रहा ਸੀ कैन आई गो एंड प्ले विद विल्ली अक्रॉस द स्ट्रीट। तो मैंने क्या विल्ली के साथ तुम खेलने नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारा ध्यान मैं नहीं रख सकती, तुम्हारी मम्मी आएगी वो रखेगी। वो बड़ा हैरान होया भी वाई यू हैव टू टेक ध्यान मेक वॉच ऑन मी। तो वो कहती है तेरी मम्मी आएगी। मम्मी कब आएगी? 5 o'clock। वो बच्चे ਨੂੰ टाइम तो देखना नहीं आता पर वेट कर रहा कब मम्मी आएगी। वो विंडो तो देखी जा रहा नाल टीवी देख रहा। जो ही मम्मी आई पार्किंग ही कार खड़ी करन तो पहले उन्होंने जाके कहता आई वॉन्ट टू गो एंड प्ले विद विल्ली। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਲੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ, ਮੰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦਾਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਔਨ ਯੂ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਚ ਯੂ ਮਾਈ ਡੀਅਰ। 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗॉड ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ। ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਮ ਵੈਨ ਗॉड ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਵਾਈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਚ, ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਮੀ ਗੋ। ਐਂਡ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿਡ ਕਰਾਈਂਗ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਗॉड ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ गॉड ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਚਿੰਗ, आई हैव टू वॉच यू। आस्ता आस्ता रियलाइज़ कराते हैं कि गॉड नहीं वाच कर रहा। इस तरह असी सच तो छुटते जाते, आस्ता आस्ता आदत पैंदियां जांदियां, गॉड तो वॉच कर नहीं रहा। मदर का कहने का मकसद कुछ होर सी पर मीनिंग निकल कुछ होर गया। बच्चा इनोसेंटली पूछ कुछ रहा है, कह रहे व्हेन यू आर सेइंग एवरी नाइट गॉड इज़ वाचिंग। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸਲੇਟ ਤੋਂ ਹੈ ਗॉड ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ এনवायरमेंट ਤੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੰਸ ਚੱਲਿਆ ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੀਮ ਲਗਾ ਲਵਾਂ, ਖਾਲ ਖਿਚਵਾ ਲਵਾਂ ਔਰ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਕਰ ਲਵਾਂ ਔਰ ਪਾਰਲਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ और जो कुछ मर्जी वाइटमिनस खा के अपने आप को फ्रैश इस तरह दिखावा, बारों बारों लाली हो सकती है पर अंदरों मत रूपी काया कुमला गई है, ताई सिर कंपिया होता है। मत रूपी काया कुमला जाए तो भ्रष्टाचार फैल जाता है, बेईमानी करन लग पैंदे आ, मंदे कर्म करन लग पैंदे आ। सस चाहती है सब कुछ चुक के मेरी धी नूं ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਬਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੰਸ ਚੱਲਿਆ ਕਾਇਆ ਕੁਮਲਾਨੀ। ਉਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਸੱਚ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਨੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ 10-11 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਹੀ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਪੜਦਾ ਸਾਰਾ ਫੈਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੀਨੇਜ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਕਰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਹਾਗਣੀ। ਦੁਹਾਗਣੀ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੀਆਂ ਫਿਰੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ, ਮੈਲੇ ਵੇਸ਼ ਤਿਨਾ ਕਾਮਣੀ ਦੁਖੀ ਰੈਣ ਵਿਹਾਏ ਜਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਲਾ ਵੇਸ਼ ਧਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਵੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਲਾ ਵੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਹਾਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟਰੂਥ। ਕਿਉਂ ਰਲੀਆ ਮਾਣ ਹੈ ਬਾਜ ਪਤਾਰਾ। ਬਾਜ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਾਊਟ, ਪਤਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਤੀ ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਲਵਡ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਰਲੀਆ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰ ਹਰ ਕੰਪਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ गई है, पति नाल सास नाल बने या ना बने, तुम इतना कमा के लाओ कि एक मेरे को कार दे दो और एक पर्स में पैसे हों, एक क्रेडिट कार्ड अनलिमिटेड हो और मेरे को सॉलिटर और सोना पैसा जीवर ले दो, बाकी तुम सारे भाड़ में जाओ। बस हूँ इन्नी टोली पुलियस तिस कंत न बैठी पास जियो। सच नाल नहीं ना जुड़दे, किवें सच नाल ना जुड़िए तो किवें सानू सुख चैन आनंद प्राप्त नहीं होंदा। सो वो मनमुखता दे शरीर उत्ते भरम दा कब्जा हुंदा है। उसनू कहंदे ने 10 दासी कर दीनी पतारी। मेरी मत जदों इस सारे शरीर दे 10 द्वारियां दा जिहड़ा मालक सी ना ओदी दासी बन गई, सच लै लिया तां रवै सुहागणी सो प्रभ सेज पतार। वो फिर रब जी नू एंजॉय कर सकती है क्योंकि मन रब जी दे नाल जुड़ चुका होया है, साईं प्रीतम मालक दे नाल जुड़ चुकी है। असी एक शब्द पढ़ देंगे, आवो भैणे गल मिले आंख सेलड़ियां। उस शब्द कहते हैं जाए पुछो सुहागणी तुसी राविया किन्नी गुणी। हुण दुहागण दे कंपैरिजन सुहागन दा शिंगार दसदे ने, सहज संतोख शिंगारिया, मिठा बोलनी, मिठा बोलदियां ने। जो दुनिया का इंसान जेड़ी जिस इंसान दी मत मिठा बोलना सिखाती है, गालां कढ़ना भैड़ बोलना नहीं सिखाती, दो दियां चार गालां कढ़ना नहीं सिखाती, मिठा बोलना सिखाती है, सहज सिखाती है, नम्रता ह्यूमिलिटी सिखाती है। वो जींदे जी स्वर्ग च होंदा है, वो भैड़ नहीं बोलता है, वो सुहागन कहलाती है। सहज संतोख शिंगारिया, मिठा बोलनी। फिर रिसालू ता मिले जां गुर का शब्द सुनी। सच सुनना ना और उहदे नाल प्रीतम दे नाल मिलाप की अवस्था प्राप्त होती है। वरना सोने का चौका कंचन कुआर, एक शब्द मैं और पढ़िया सी, उहदे विच ओह कहंदे ने भी तू अपने आप नूं सुच्चा करन वास्ते सोने का चौका बना लें और अपनी सारी बॉडी उत्ते भी सोना पा लवें, सोने दे नलके लवा लवें और चारों पासे सोना, सोने नूं बड़ा प्योर समझिया जाता है। सोना धार्मिक दुनिया विच भी इस करके कंचन काया कहंदे ने। तू चारों पासे सोने का सब कुछ कर लवें, सोने की रोटी खाए, सोने का पानी पीए, चांदी का तेरे भांडे होन और उन्होंने विचकार तू सोना पा पा के पीए, सोने का भोजन खाए, ता भी तेरा मन पवित्र नहीं होएगा। मन पवित्र होएगा सहज संतोख शिंगारिया दे नाल होएगा, ये बाहरले शिंगारां नाल कुछ नहीं होएगा। क्यों रलिया मान है, किवें मान सकती है, ये मत नूं समझ आ रही है। हुण मत भी ना सीधे पासे पै गई। मन की चंगी अवस्था उन्हें फॉलो किया, हुण सीधे पैसे पै गई। हुण मत पता की कहती, काग उडावत। मैं जेडे विकारां दे हनेरे च रहिंदी सी ना, विकारां नूं गुरबाणी विच कां कहा है। जदों कदे किसी इस्त्री दा पति बाहर चला जांदा सी तां ओह अपनी सहेलियां नाल गल करदी सी, अज बनेरे ते कां बैठा है, अज ना मैं मन अंदर विश की सी, ये कां उड़ जाए तो मानो मेरा पति आ जाएगा। उहदे वास्ते कबीर साहब ने शब्द उचारिया, पंथ निहारै कामनी लोचन भरी ले उसासा, उड़ ना भिजे पग ना खिस्से हर दर्शन की आशा, उठो ना कागा कारे बेग मिलीजे अपने राम प्यारे। वो कहती है कां जे तू उड़ गया ना तो प्रतीक हो जाएगा कि मेरा प्रीतम बिलवड अज घर आ रहा। वो औंसियां पाती सी दीवारां ते ना, गिणतियां लिख लिख के उन्हां दे नाल काउंटिंग करती रहती सी, दिन एक एक कटती जाती सी, गिणतियां तो उन्होंने आदियां नहीं सी, ऐसा ऐसा लीका लिख मारती जाती सी। अज एक दिन गया, फिर दूजा दिन गया, तीजा दिन गया, इस तरह सालां बद्धी बिता सकती सी।
ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਇਹ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਾਂ ਜੇ ਉੱਡ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਏਗਾ। ਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕਾਗ ਉਡਾਵਤ, ਕਾਗ ਹੈ ਵਿਕਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਕਾਰ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਰਹਿਣ ਗਈ ਨਾ। ਪੂਜਾ ਇਹ ਬਾਵਾਂ ਪਿਰਾਨੀ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉੱਤਮ ਅਕਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉੱਤਮ ਖਿਆਲ ਫੁਰ ਗਏ। सच की मत लै लो ना, ज्ञान राव जब सेजे आवे तो नानक भोग रही तो सच की पत्ती दियाँ बाहां विच आ गई, अदरवाइज जलन से बाहड़ियाँ हो जाता है। तुसी कदे सारा शब्द पढ़ना जिहड़ा गुरु साहब मोरी रूण चुन लाया भैणे सावन आया, उहदे विच सारा एक वो कंगन कित्थे गए, वो सारा कुछ कित्थे गया, वो तेरियां बाहां सड़ जान योग ने जिहड़ियां अपने प्रीतम नूं नहीं एम्ब्रेस कर सकियां। सो उनको उच्ची अवस्था प्राप्त की कि कह कबीर एक कथा सिरानी, सिरानी हुंदा मुक गई, भैड़े ख्याल मुक गए, जन्म सिरानो। ये भैड़े ख्यालों का सिरानी, सिरानो का मतलब हुंदा पास्ट इज गॉन, विकारा वाला रहन गई, हुण मत दी भी चली गई। एक बारी निज घर दे जिथे मन ने शब्द नूं लै लिया, निज घर दी गल नूं लै लिया, उस पासे जदों सारे सुरत मतमन बुद्ध घड़े जाते हैं ना, तिथे घड़ी है सुरत मतमन बुद्ध। तो हुण इस शब्द विच मत घड़ी दा सिखाया कि मत नूं भी समझ आ गई कि जो ही विकारां दा हनेरा रहन नूं छड्डो। काग उडावत पूजा, ये बावां बावां सिर्फ इन्हां हत्थां नूं नहीं कहंदे ने, मीनस फुल एम्ब्रेस ऑफ गॉड। प्रभ कीजे कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे, हो तुमरी करो नित आस प्रभ मोए कब गल लावेंगे। हुण रब जी दे गल लग गए, वननेस जींदे जी प्राप्त हो गई। जिन्हां नूं जींदे जी प्राप्त हो जाए ना, उन्हां बारे नहीं कहना पैंदा इन्हां नूं चरनां च निवास बख्शना मरण तो बाद। उन्हां बारे नहीं कहना पैंदा इन्हां दे अवगुण बख्श दिओ, इन्हां नूं स्वर्ग च निवास बख्शना पैना। उन्हां वास्ते वरीणे नहीं करने पैंदे, उन्हां वास्ते शराद विचोला पखंड नहीं करना पैंदा। शायद इसी करके अकाल तख्त की रहत मर्यादा के अंदर ये पॉइंट रखा गया कि वरीणे नहीं करने चाहिए। पर अफसोस की गल असी सिख जगत अंदर रह के भी ना तो रहत मर्यादा पढ़ते हैं तो ना गुरबाणी चो सीखते हैं, इस करके असी भी शराद मनाई जा रहे हैं, असी भी पाखंड करी जा रहे हैं, असी भी कर्म कांड कर करके सारा वरीणे वाली गेमां करी जा रहे हैं। फिर जिन्हां दे घरां दे विचकार 11 महीने दे विचकार कोई खुशी का प्रोग्राम आ गया ना, वो फिर वो खुशी का प्रोग्राम मान लिया घर विच कोई ब्याह शादी कोई झट या कुछ भी ऐसा है जिहड़ा ऑलरेडी स्कैजूल्ड है, फर्ज करो 5वें महीने स्कैजूल्ड है, तो चौथे महीने ही वरीणा कर लेंगे। देखो पाखंड भी अपने हाथ च रखा है। वो तुहानू किन्ने कहा कि वरीणा करो, आराम दे नाल तुसी खीड़े मत्थे रहो, एक खीड़े मत्थे रहो, रजा पाना मन के रहो। ये वाली सारी जीवन जाच गुरबाणी सिखाती है। इस करके साडे घरां विच जम्मण मरण वेले, भोग वेले, हर वेले, खुशी गमी वेले, जो भी दुनिया ने ना रखे ने सब वेले सानू सिखाया गया आनंद पिया मेरी माए पढ़ ते नाल कड़ा प्रसाद वरता। ये नहीं कि डेथ हुई है तो फिक्के फिक्के फुलियाँ खाएंगे और मुंह सुजा के बैठे रहेंगे और खुशी होगी तो ढोल ढुमक्के से शराब बांटेंगे। नहीं, दोनों वेले बैलेंस्ड। आनंद पिया मेरी माए की होया, पूजा पिरानी जो हो गया, सतगुरु मैं पाया प्राप्त जो हो गया। क्या कबीर, एक कथा सिरानी, झूठ दी पाखंड दी कहानी खत्म हो गई, विकारां दी रात चली गई।